Tang naman lapo. Ang kalpati lang.
So, আমি জয়ান্তি ইমান দিন আমাৰ লগত আছিল এইটো আমাৰ খুবেই জয়ান্তিৰ লগত যিমান সময় আমি কটাইছোঁ এইটো বিৰাট সুন্দৰ দিন আমি মানে এইটো ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰোঁ আজি আমাৰ জয়ান্তি শৰীৰত আমাৰ লগত নাই লেকিন স্পিৰিটত এই ঈশ্বৰৰ লগত আছে আমেন আৰু এদিন আমি নিশ্চয় লগ পাম চ' আজি তাৰ শৰীৰৰ আত্মাটো অলৰেডি ঈশ্বৰৰ লগত আছে লেকিন শৰীৰটো আমি এজ পাৰ দ্য বাইবল তাৰ শৰীৰৰ আজি আমি বিদায় দিম আৰু সেইটো এটা বাইবেল অনুসাৰে বাইবেল কৈছে মাটিত মিলি যাব অৰ্থ এটা এটা পুণ্য কাম হয় ভাল কাম হয় আৰু আমি যে চবেই যেন ইয়াত গোট খাব পাৰিছোঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা চ' মোৰ লগত ঈশ্বৰ দাস কিটা আছে ইয়াতে মনোজ ঘাট যোনটো গ্ৰেচ কপ ইনচাৰ্জৰ কয়লামাৰীয়াৰ ইনচাৰ্জ হয় আৰু পাষ্টাৰ স্কেইম যোনটো আমাৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত চাইগে আৰু তাৰ লগত আহিছে মংগল এণ্ড বিনোদ চ' আমি একেলগত এটা সময়ত সেৱা কৰিছিলোঁ বাট আমাৰ ইয়াত কোনো ডেনমিনেশ্যন বেৰিয়াৰটো নাই ঠিক আছে আৰু সেইটো অকলি এটা লক্ষ্য আছে আমাৰ কি জয়ান্তি যেনেকৈ আমাৰ জীৱন আশীৰ্বাদ লৈছিল আমি চবেই মিলি যেন তাৰ অন্তিম বিদায় এক লগত কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছোঁ চ' সেইকাৰণে কাৰো মনত কিবা খাচ হ'ব নালাগে আৰু সেইটো এটা মই আৰম্ভণিত কৈছোঁ এটা পুণ্যৰ কাম হয় হ'ব পাৰে আন্টি আজি আমাৰ লগত শৰীৰৰ মানে আত্মাত ঈশ্বৰৰ লগত আছে শৰীৰত এতিয়া আন্টি শুই আছেগৈ আৰু এদিন নিশ্চয় সি পুনৰ জি উঠিবগৈ আমেন চ' সেইকাৰণে ব'লা আমি চবেই থিয় হওঁ আৰু আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ মোৰ ব্ৰাদাৰ মনোজ কাটক যেন সি প্ৰাৰ্থনা কৰি যেন আৰম্ভণি কৰে আমি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি এই সময়ত প্ৰভুৰ হাতত সদায় দিওঁ যাতে আমাৰ যি কাৰ্যসূচী আছে এই কাৰ্যসূচী যাতে প্ৰভুৱে আমাক আমি চবে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ धन्यवाद खुदा हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आसन हालेलुया प्रभु ये सुंदर कार्य प्रभु जिन्हें हमें याद करो हालेलुया विश्वास करते हैं आज जया अंती के सभी है आज प्रभु में प्रभु सोए हुए हैं जो वचन के अनुसार सभी बिल्कुल शरीर के विदाई और कार्य में है प्रभु हमें सभी इस कार्य में लक्ष्य प्रभु वचन के अनुसार जी प्रभु हेवन के जो शरीर है कार्य আপনার সঙ্গে নিবেদন করেছি ये प्रार्थना करते हैं इस समय में आपके पवित्र चरण में सौंपता हूं और इस समय के लिए प्रभु मैं आपको फिर से धन्यवाद करता हूं धन्यवाद के साथ आने वाले हमारे यीशु मसीह के नाम से आमीन So, আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ৱৰ্শ্বিপ টিম আহক আৰু এটা গীতেৰে আমি আগবাঢ়ো এফালে Hallelujah.
का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, सुखों का अंत न होगा। योरदे हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। और एक बार योरदे हमारा देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपना देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सब ताली बजा के इस समय हम जानते हैं हम किसको सब ही हम जानते हैं वो परमेश्वर के साथ तेरी महिमा हो बड़े আমাৰ সকলোৱে বিশ্বাসী আমেন চবেই যেন মিলি এই শনিবাৰৰ পৰা যেন আমি যুঁজি আছোঁ মেডিকেল দৌৰা-দৌৰি চলি আছেগৈ সকলো বিশ্বাসীক মই ঈশ্বৰক কোটি কোটি ধন্যবাদ কৰোঁ মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ আপোনাৰকেইটা যোনটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন শনিবাৰৰ পৰা যেন শনিবাৰ বোলে নহয় আমি ইমান দিন যেন লগত আছে আৰু যিকোনো অসুবিধা সমস্যা যেন আমি একেলগত আছোঁ তাকে ডাঙৰ কাৰ্য হ'ব নোৱাৰি চ' আমি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড অলপ বাক্য আমি আমাৰ পাষ্ট স্কিম আমাৰ মাজত আছে গ্ৰেছ কাপ ইনচাৰ্জৰ পাষ্ট আমি দুখাৰ ঈশ্বৰৰ বাক্য তাৰপৰা শুনিম আৰু বাকী পৰিয়ালৰ পৰা দুখাৰ ক'বলৈ আমি সুযোগ এটা দিম তাৰপাছত আমি বাকী কাৰ্যখন আগবঢ়াই লৈ যাম চ' পৰিয়াল যুগুত হৈ থাকিবা চ' পাষ্ট স্কিম প্লিজ Praise the Lord. Hallelujah. Excuse me, थोड़ा मेरा सर्दी जुकाम के कारण से शायद इतना जोर से नहीं बोल पाऊंगा परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा मौका मिला कि आज फ्यूनरल सर्विस में आने को मिला है मैं भी शिलोंग में था लेकिन शनिवार को मैं यहाँ पर पहुँचा और परमेश्वर की इच्छा है मैं विश्वास करता हूँ कि ये फ्यूनरल सर्विस में अटेंड करने को मिला हूँ और सचमुच मेरा तरफ से कॉन्डोलेंस में देना चाहूँगा कि ब्रदर सुजीत को और सिस्टर को आपका परिवार को कि सचमुच आपने अपना माँ को खोया है और ये सबका जरूरी में अगर सोचा जाए ये बहुत दुख का बात है क्योंकि जब हम लोग कुछ खो जाते हैं मन में दुख लगता है और ऐसा चीज़ जब खो जाते हैं जब कोई वापस ना आए आपने भी वही खोया है कि वो वापस नहीं पाएंगे आप जो चला गया ये शरीर में है लेकिन एक चीज़ हम लोग मैं बोलना चाहूँगा कि वचन के अनुसार जब हम लोग यीशु में विश्वास कर लेते हैं वो अलग हो जाता है परमेश्वर का वचन कहता है मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कोई पढ़िएगा कृपया दूसरा करंथी 5 अध्याय 8 और 4 अध्याय का 18 पद पढ़िए 3 का 18 हाँ 3 का 18 पढ़िएगा सेकंड कोरिंथियन हाँ 3 का 18 4 का 18
सॉरी, दूसरा कोरिन्थी का 4:18। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। आमीन। बाइबल कहता है कि हम लोग जो है ना, दो तरह का वस्तुएं हैं। एक देखने वाला जो वस्तु, जो आंखों से देखने वाला वस्तु है, और एक वस्तु है जो आंखों से नहीं देख सकते। ऐसा चीज है जो हम लोग आंखों से भी देख सकते हैं, और ऐसा चीज भी है जो हम आंखों से नहीं देख सकते। जैसे कि गाड़ी, बंगला, जमीन, जितना भी हम लोग यहाँ पर है, जो आंखों से जो हम लोग देख सकते हैं, या आंखों के दृष्टि के अनुसार जो हम लोग देख सकते हैं, बाइबल कहते हैं कि सब एक थोड़े समय के है। इंग्लिश में कहेंगे इज टेम्पोररी, ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। जितना भी हो, जितना भी हम लोग आंखों से जो देखते हैं ना, जो वस्तु है ना, वो ज़्यादा नहीं, वो टेम्पोररी होता है, हमेशा के लिए, सदा के लिए नहीं। सदा के लिए नहीं बना है। एक दिन वो चला जाएंगे, एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। बंगला आज अब जितना भी करोड़ का जो बंगला क्यों ना बनाए, वो एक दिन नष्ट हो जाएंगे। हम लोग बड़े बड़े गाड़ी क्यों ना खरीदे, वो भी एक दिन तो नहीं क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जो कुछ भी संसार में जो वस्तु है ना, जो आंखों से हम लोग देखते हैं, वो हमेशा एक दिन चला जाएंगे, वचन कहता है। लेकिन ऐसा चीज भी है, ऐसा वस्तु भी है जो हम लोग आंखों से नहीं देखते, और वो आंखों से जो नहीं देख पाते हैं, वो सदा के लिए रहते हैं, अनंत काल के लिए रहते हैं, बाइबल कहते हैं। तो ये चीज क्या है? जैसे कि मैंने कहा कि हाँ, हमारा जो जितने भी जो संसार में है, वो देखने वाला चीज है जो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, और वो जो है क्या, कुछ समय के लिए। और जैसा मैंने कहा था, गाड़ी, बंगला, घर, जमीन, जो भी है हम लोग आंखों से देखते हैं। और एक चीज है परमेश्वर ने बनाया है, वो है हमारा शरीर। परमेश्वर ने उत्पत्ति के 1 अध्याय में अगर पढ़ेंगे, या 2 अध्याय का 7 में पढ़ेंगे, 2 अध्याय का 7 में, वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मिट्टी से बनाया। बाइबल कहती है मिट्टी से बनाया, और जब मिट्टी से बनाने के बाद शरीर को बनाया था, लेकिन उसमें प्राण, जीवन नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है कि जिस दिन परमेश्वर ने सांस फूका नथनों के द्वारा, उसमें जीवन आने लगा, और उसी दिन से मनुष्य को ऐसा कहने लगा कि जीवित प्राणी। उसी दिन से हम लोग जीवित प्राणी हो गए, जिस दिन परमेश्वर ने सांस फूकने लगा। और जब परमेश्वर जब हमको सृष्टि किया था, या हमको मतलब जब ने रचाया, हमको बनाया, शरीर में बनाया, तो शरीर एक मिट्टी से बनाया था, मिट्टी। इसलिए ये देखने वाला चीज है। आज जब आप हमको देखते हैं तो शरीर को देखते हैं, मैं जब आपको देखूंगा शरीर को ही देखूंगा। लेकिन एक चीज है जो हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो है प्राण और आत्मा। जिस दिन परमेश्वर ने सांस फूका मनुष्य के जीवन में, उस दिन से प्राण और आत्मा प्रवेश करने लगा मनुष्य के शरीर में। और बात क्या है इसमें कि ये जो ना देखने वाला चीज, जो प्राण और आत्मा, जैसे मैंने कहा था, ये अनंत काल के लिए है, ये हमेशा के लिए है। परमेश्वर जो अनंत काल के लिए बनाया गया। लेकिन शरीर जो है, क्योंकि हम लोग आंखों से देख पाते हैं, ये कुछ समय के लिए है। इसलिए जितना भी हम लोग संसार में अगर रहेंगे ना, ज्यादा हम लोग नहीं रह पाएंगे। आज आंटी जो है, जया आंटी जो है 85 हो चुकी है। कुछ लोग तो 85 भी नहीं, 80 को तो हाँ, जैसे कि हम लोग ने ज़्यादा दिन नहीं हुआ, एक बड़ा असम का बहुत बड़ा सिंगर था जो जुबिन गार्ग, उसके विषय में हम लोग सुना, वो गुजर गया। कितना उम्र में? 52। कोई तो 50 साल, कोई तो 40 साल, ज़्यादा मतलब इतना मतलब उम्र कम होने लगा। अभी बहुत कम उम्र में आदमी लोग गुजर रहा है या मर रहा है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि आंटी कम से कम क्या होता है 85 तक वो जिया है। परमेश्वर को धन्यवाद।
बाइबल में तो लिखा है कि 70 साल तक आदमी लोग जी सकते हैं, और अगर स्वस्थ है तो 80 साल। बाइबल के अनुसार 80 साल भी पार हो चुके हैं वो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद कि 85 उम्र तक वो जिया है। लेकिन फिर बाइबल कहता है फिर हम लोग दुनिया में इतना जी नहीं सकेंगे, एक दिन तो एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएंगे। अगर 100 साल भी जियो, एक लिमिट होता है, एक वैलिडिटी होता है। हमेशा के लिए, सदा के लिए ये शरीर संसार में नहीं रह सकता है। उम्र भर ऐसा कोई चीज संसार में नहीं निकला कि आप खाकर या पीकर कि सदा के लिए आप लोग यहाँ पर रहेंगे, रह सकेंगे। लेकिन क्या है कि एक दिन हम लोग यहाँ से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइबल पहले से कहा कि जो देखने वाला जो वस्तु है ना, वो कुछ समय के लिए है, और हमारा शरीर भी वो देखने वाला वस्तु ही है, आंखों से देखने वाला वस्तु है। तो इसलिए कि ये एक एक्सीडेंट का बात नहीं है, अचानक का बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही से कहा कि एक दिन को हमको जाना है। आज आंटी गया, आने वाला ने कोई तो कोई जाएंगे। खाली फर्क यही है, कोई कम उम्र में जा सकता है, कोई ज्यादा उम्र लेके जा सकता है, कोई आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जाना है तो सभी को जाना है। लेकिन बात यह है कि हाँ, परमेश्वर ने कहा कि जो हमारा प्राण जो है ना, हमारा आत्मा जो है, वो अनंत काल के बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट कि बाइबल कहते हैं कि जो प्राण और आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है हमारे हम सभी को, वो जब मृत्यु जब आता है, सुनिएगा, जब मृत्यु जब शरीर के जीवन में, जब आदमी के जीवन में आता है, तो वो प्राण आत्मा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिया, फिर वो वापस जाएंगे। मेरे लिए प्लीज उपदेशक 12:7 में पढ़िएगा। उपदेशक 12:7 में बाइबल का धर्मशास्त्र में लिखा है कि शरीर जो है, क्योंकि मिट्टी से आया है, वो मिट्टी में चला जाएंगे, गाड़ो या जलाओ जैसा भी हो, लेकिन बाद में मिट्टी में मिल जाएंगे। ये है क्या कि ये दस्तूर है, परमेश्वर ने बना चुका है कि मिट्टी से आने वाला चीज जो है मिट्टी में जाएंगे वापस। लेकिन जो प्राण और आत्मा जो परमेश्वर ने दिया ना, फिर जिसने दिया है उसके पास ही वापस जाएंगे। ऐसे लिखा है, पढ़िएगा। जब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। ये परमेश्वर का वचन कहती है। आमेन, हालेलुया। आज आंटी का जो शरीर को हम लोग मिट्टी में लेके जाएंगे, क्योंकि वो मिट्टी से बना है। लेकिन मजा का बात यह है, उसका जो आत्मा और प्राण, क्योंकि परमेश्वर ने दिया है, वो वहां पर वापस जाएंगे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि ये जो है हर एक मनुष्य का आत्मा प्राण, हाँ, परमेश्वर के और ही लौट जाएंगे। लेकिन खाली एक चीज है, ये जानना चाहिए कि सभी का नहीं है। परमेश्वर तो एक रखा था कि सभी का आत्मा प्राण जो है वापस जाने का। परमेश्वर ने ही एक बनाया था कि क्या रूल बनाया था कि ये जो आत्मा प्राण जो है फिर वापस जाएंगे। लेकिन खुद मनुष्य ने ये चीज को रोक दिया। जिस दिन मनुष्य ने पाप करने लगा, ये आत्मा और प्राण वापस नहीं जा पाया। परमेश्वर के और जाने की जगह में वो प्राण जो है नरक में जाने पड़ा, क्योंकि मनुष्य के पाप के कारण। लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है। यीशु मसीह को देखकर हमारा पाप में वो मरने के लिए वो संसार में आ गया और हमारे लिए वो मरा। और बाइबल कहता है कि फिर से वो यीशु के द्वारा फिर से हमको मौका दिया है। और आज जो भी यीशु को विश्वास करेंगे या यीशु को विश्वास करता है, उसके लिए एक रास्ता बन चुका है। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं मार्ग हूं। वो आत्मा जो वापस जाना चाहिए था, पाप के कारण नहीं जा सका। लेकिन जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते, विश्वास करते, यीशु को ग्रहण करते, तो ये प्राण जो है फिर मौका मिल जाता है परमेश्वर के ओर जाने के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आंटी जी ने भी एक समय, हाँ जी, जब जन्म हुआ तो पापी के रूप में ही जन्म हुआ, लेकिन एक समय थी कि उसने भी यीशु को विश्वास की और वो यीशु को ग्रहण की। और इसके कारण वचन के अनुसार हम बोल सकते हैं
क्योंकि यीशु को विश्वास करने के कारण, यीशु को ग्रहण करने का कारण उसने भी यीशु को, वो मार्ग को ग्रहण किया है। इसलिए वो वचन, हाँ वो शरीर में मर चुकी है, वो आत्मा जो वापस नहीं जा सका, लेकिन यीशु को विश्वास करने के कारण एक फिर से रास्ता, एक मौका मिल गया कि वापस जाने के लिए। इसलिए वचन के अनुसार कहते हैं, देखो फिर 2 कोरिन्थी का 5:1 में पढ़ेंगे, बाइबल क्या कहता है कि शरीर, हमारा जो शरीर एक घर की जैसा है, घर की जैसा है, एक घर की जैसा है, ओके, एक मनुष्य बनाए वाला घर का जैसा है। एक दिन तो ये टूटेगा ही टूटेगा। देखो पढ़िएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, हाँ गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। आमेन। देखो ये घर जो ये शरीर, ये टेम्पररी, ये तो एक दिन जाएंगे, टूटेंगे। और वो जब मृत्यु जब आता है, सोच लो, जान लो कि हमारा शरीर टूट गया है, लेकिन हमारा आत्मा तो कहीं तो रहना पड़ेगा। और बाइबल कहता है तो हमारा जो आत्मा का ना एक एड्रेस चेंज हो जाता है, और वो है संसार में नहीं, लेकिन क्या होता है, स्वर्ग में वो चला जाता है, एड्रेस चेंज हो जाता है। आज आंटी का जो आत्मा जो है ना, एड्रेस चेंज हुआ है। ब्रदर सुजीत, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपका आंटी का ना एड्रेस चेंज हुआ है। पहले तो कहाँ रहती थी, नॉर्थ लखीमपुर में, लेकिन अभी उसका जो आत्मा है ना, अभी लखीमपुर में नहीं, वो स्वर्ग में चला गया, क्योंकि वह चल गया था। और बाइबल कहता है कि जब हमारा आत्मा जो है, जब मृत्यु आता है, विश्वासी का जो आत्मा मैं बोल रहा हूँ, जो यीशु को विश्वास किया, वो आत्मा क्या होता है, फिर 6 में पढ़िएगा, वही 5 का 6 में। सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं, या शरीर में रहते हैं, मतलब हमारा आत्मा देह में या शरीर में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग है। तब तक परमेश्वर से अलग है, प्रभु से अलग है। आज जितना भी हम लोग, हाँ परमेश्वर को उपस्थिति में, लेकिन हम परमेश्वर से दूर है। फिर 7 में क्या, 8 में क्या कहती है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर हाँ। प्रभु के साथ रहना हाँ। और भी उत्तम समझते हैं। आमीन। उसका मतलब क्या है कि जब मृत्यु आता है तो हमारा प्राण आत्मा जो है शरीर से अलग हो जाते हैं, और जब अलग होने के बाद कहाँ जाते हैं, परमेश्वर का उपस्थिति में। हालेलुया। इसलिए एक शरीर में अगर सोचा जाए, एक दुख का बात है। अब शरीर में आपने अपनी माँ को खो लिया है, लेकिन अगर आत्मा में अगर हम लोग सोचेंगे ना कि वो तो अच्छा जगह पर वो चला गया, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति में चला गया। हालेलुया। इसे विश्वासी को ये चीज को समझना है कि आनंदित ये चीज में है कि हमारा जो आत्मा जो है ना, जब यहाँ से गुजर जाता है तो परमेश्वर को उपस्थिति में चला जाता है। इसलिए परमेश्वर को विश्वास करना ना, यीशु को ग्रहण करना, ये हमारे लाभ है, नुकसान नहीं। आमीन। इससे जब हम लोग यीशु को ग्रहण किया है तो हमारे लिए एक लाभ है। लाभ क्यों है? क्योंकि हमारा आत्मा जो है, हमारा प्राण जो है, परमेश्वर को उपस्थिति में चला जाता है। तो इसलिए मैं सभी को ये उत्साह देना चाहूँगा कि विशेष ये परिवार को जो आपने एक अपना माँ को खोया है, खाली ये उत्साह देना चाहूँगा कि आप चिंता मत कीजिएगा, दुखित मत हो। हाँ, एक शरीर में एक अटैचमेंट होने का इमोशन हम लोग होते हैं, हम रोते हैं, दुख होते हैं, क्योंकि और आप कभी भी उसको नहीं मिल पाएंगे शरीर में। लेकिन एक ये मज़ा का बात ये एक है कि उसका आत्मा जो परमेश्वर की उपस्थिति में चली गई। आमीन। तो वो सोचकर हम खुश हो सकते हैं। हाँ, अगर नरक में अगर चला जाता है सबसे दुख बात वो होता है, लेकिन मज़ा का बात क्यों है कि हाँ, शरीर से हमसे छूट गए, हमसे दूर हो गए, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति या उसका निकट वो पहुंच चुकी है। आमीन। तो इसलिए कि फिर से मैं कहूँगा कि परमेश्वर में और भी मजबूत होना अच्छा बात है, परमेश्वर को विश्वास करना अच्छा बात है, यीशु को ग्रहण करना अच्छा बात है, क्योंकि यीशु को ग्रहण करके हमारा नुकसान नहीं होता है आत्मा के लिए, लेकिन क्या है, बहुत फायदा होता है, क्योंकि
जब यहाँ से हम लोग चला जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग चला जाते हैं। तो सभी को परमेश्वर आशीष दे और ये हमारा ब्रदर सिस्टर का परिवार को भी आशीष दे और गॉड प्रभु आपको और भी सहायता करे आगे बढ़ने के लिए कि क्यों हुआ क्या हुआ, शायद आपको भी हम उत्तर नहीं दे पाएंगे क्यों ऐसा घटना हुआ, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन आप आने दिनों में आप समझ जाएंगे कि आप उत्तर पाएंगे हाँ क्यों ऐसा हुआ है। कि जो कुछ भी होता है बाइबल कहता है अच्छा के लिए होता है, जो कुछ भी हुआ है बुरा के लिए नहीं लेकिन अच्छा के लिए हुआ है। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे, आमीन। So, बहुत बहुत ধন্যবাদ আমাৰ পাছৰ স্কেম ইমান সুন্দৰ ঈশ্বৰ বাক্যত আমাক আগবঢ়াই লৈ গৈছে। আৰু সঁচাকৈও আমাৰ যদি স্কলাৰশ্বিপত চাই বাইবেল উল্লেখ কৰে কি সকলো বস্তুৰ এটা সময় থাকে, নহয় জানো? জন্ম হোৱা মৃত্যুৰ এটা সময় থাকে। চ' আজি হ'ব পাৰে আমি শৰীৰত আণ্টিয়ে শুই আছে, আমি নিশ্চয় জানো এদিন আমি নিশ্চয় লগ পাম। আৰু শৰীৰত যদি আণ্টি যে শুই আছে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা বেদনা দুখৰ সময়, লেকিন তাকে আনন্দৰ কথাও সেয়ে কি আমি লগ পাম, ঠিক আছে? আৰু নিশ্চয় আজ আণ্টিৰ যোগেদি আমাক এটা ডাঙৰ শিক্ষা আমি পাই আছোঁ কি জানেনে? কি যেনেকা আজি কফিনত মই শুই আছোঁ তেনে চবৰ এটা টাইম আহিব। আজি ইমান সুন্দৰ আণ্টি ইমান বয়সত 85 সৰু বয়স নহয়, নহয় জানো? এটা আজি ডেটত আজিকালি দিনত 85 বয়স থকাও জীয়াটাও বহুত ডাঙৰ কথা, হয় নহয়? একমাত্ৰ ঈশ্বৰ অনুগ্ৰহেহে কাৰ্যটো, ঈশ্বৰ অনুগ্ৰহেহে আমাৰ বয়সত বাইবেল কৈছে আয়ুখন বাঢ়ি যাবগৈ। চ' আণ্টিয়ে যিটো বয়সত আজি কাৰো কষ্ট নিদি, ইভেন মণ্ডলীও কষ্ট পোৱা নাই, ইভেন পৰিয়ালো কষ্ট পোৱা নাই, আমাক চবক আজি শৰীৰৰ আণ্টি জয়া আণ্টি আমাৰ লগত নাই। চ' সেইকাৰণে আমি ইমানটো সামৰোঁ, লেকিন মই দুখাৰ কথাই পৰিয়াল এজনাকে ক'বলৈ মই দিছোঁ। ভিন্দ আছে, সুজিতা আছে, মা ওচৰত কোনোবা এজনে দুখাৰমান ক'বা যদি অন্তিম বিদায় কাৰ্য যোন আমি কৰিব কাৰণে গৈ আছোঁ। কৃষ্ণত মা গুচি গ'ল, মাৰ লগত বহুত টাইম স্পেণ্ড কৰিছোঁ, লগতে আছিলোঁ বহুত দিন। মানে চ' মই এটোপা দুখাৰমান আমাৰ মংগলী চাইডৰ মুখাত যে কয় আৰু তাৰপিছত আমি সামৰোঁ। এটোপা আগলৈ আহা। Praise the Lord. Hallelujah. So, ধন্যবাদ দিছোঁ সুন্দৰ সময় দিয়াৰ কাৰণে। আৰু মই বিশেষকৈ পাছৰ আমাৰ আগতো লগ পাইছোঁ, কেতিয়াবা সুন্দৰ কথাবিলাক হৈ গ'ল। একচুৱেলি এটা আমাৰ সেইবিলাক না এনেকৈ আমি যাব লাগে বুলি চবকে শিকাই গৈছে, লেকিন আমি বহুতখিনি আমি গৈ মণ্ডলী হৈ পেলাই আমি বিশ্বাসী হৈ পেলাই বহুত গৈ আণ্টিক আমি লগ কৰিছিলোঁ। আৰু ৰিচেণ্ট বাৰ্থডে আছিলে 21 তাৰিখে আমি মানুহজনী আৰু মই গৈ গামোচাৰে তেওঁক আদৰণিও কৰিছিলোঁ। তেওঁ বহুত ভালকৈ কথা পাতিছিলে। ময়ো সঁচাকৈ আজি সঁচাকৈ আমি দুখ পাইছোঁ। হয়, আমি ইয়াত দুখ কৰিলেও আমি সৰ্গত লগ পাম, মই বিশ্বাস কৰোঁ। সেইকাৰণে এটা থেংক ইউ ছ' মাছ। মই বিশেষ ক'ব পৰা নাই, বেছি দুখ পোৱাৰ কাৰণে। থেংক ইউ। চ' ব'ল আমি চবেই থিয় হওঁ, এণ্ড প্ৰাৰ্থনাৰে আমি চবেই মিলি প্ৰাৰ্থনাৰে আমি এই কাৰ্যসূচী আমি আগবঢ়াবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। চ' চবে যেন ইয়াত যেনেকৈ আমি ইয়াৰ পৰা যাম তালৈ চবেই যেন আমাৰ পিছফালে এটা গীতেৰে যিটো গীত আমাৰ প্ৰেজেণ্ট ৱৰ্শ্বিপ টীম গাব,
সেই গীতেৰে আমি ইয়াৰ পৰা তালৈ যাম ঠিক আছে ব'লা আমি ইয়াৰ পৰা যোনটো উঠাই আমি ক'বলৈ যাম অকল প্ৰাৰ্থনাৰে যাতে কি আমি ভালে ভালে সেই ঠাইজন পাই আৰু ভালে ভালে কাৰ্যসূচীখন আমি আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰিম চবে মিলি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰা ব'লা স্বৰ্গত থকা পিতৃ মই তোমাক কোটি কোটি ধন্যবাদ কৰোঁ এই সুন্দৰ সুযোগ সুন্দৰ সময় তুমি যে আমাক দিলা প্ৰভু আজি জয়ন্তী যোনটো শৰীৰত হালেলুয়া আজি আমাৰ মাজত নাই প্ৰভু শৰীৰত প্ৰভু আজি শুই আছেগে পৰন্তু আমি বিশ্বাস কৰোঁ তোৰ আত্মা তোমাৰ লগত আছে প্ৰভু তোমাৰ ওচৰত আছে প্ৰভু আৰু প্ৰভু ইয়াৰ পৰা যোনটো আমি কাৰ্যসূচী প্ৰভু খবৰলৈ যে আমি আগবাঢ়ি যাম প্ৰভু সকলোতে প্ৰভু তুমি যেন আমাক আগবঢ়াই লৈ যায় আমাক ৰক্ষা কৰে আশীৰ্বাদ কৰে যেন প্ৰভু এই পবিত্ৰ কাৰ্যত মই তোমাক কোটি কোটি ধন্যবাদ কৰোঁ তোমাৰ বাক্যত লিখা আছে আত্মা য'ৰ পাছে তালৈ গুচি যাব আৰু শৰীৰ মাটিত আহিছে মাটিৰ পৰা মাটিৰ ওলটাই গুচি যাব আৰু সেই সুন্দৰ কাৰ্য প্ৰভু আৰু ইমান বছৰ যেন আমাৰ লগত জয়ন্তী প্ৰভু জীয়াই থাকে আমাৰ মাজত আশীৰ্বাদৰ পাত্ৰ হ'লা আৰু বহুতখিনি আমি তাইৰ পৰা শিকিছোঁ প্ৰভু আৰু আমি চবেই ইয়াত প্ৰভু এই সুন্দৰ কাৰ্য যেন আছোঁ তুমি সকলোক আশীৰ্বাদ কৰা প্ৰভু আৰু মই ডেট স্পিৰিট বান্ধি যীশুৰ নামত প্ৰভু যাতে কি সকলোৱে কাৰ্য সুন্দৰৰূপে যেন আগবাঢ়ি যায় যীশুৰ নামত আমেন আপোনাক চাবলৈ আমি আমাৰ মৰমৰ আমাৰ জয়ন্তী Sampai perlu dia hong, ada aktif lain dia hong, ada perlu sudah. यहाँ के सुखों का अंत होगा यहाँ के सुखों का अंत होगा वहाँ के सुखों का अंत होगा वहाँ के सुखों का अंत होगा जीवन देश हमारा है देश रहते हम पर देश जाएंगे हम अपना देश जीवन देश हमारा देश रहते हम पर देश जाएंगे हम अपना देश पूरा बाकी आसे दिया हाँ लास्ट Hallelujah.
होगा वहाँ यीशु होगा ना होगा सियोन देश हमारा ये देश रहते हम परदेश जाए हम ना देश सियोन देश हमारा है देश रहे हम परदेश जाए हम हालेलुया 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 हमारा है देश रहते हम हालेलुया 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 सियोन देश हमारा है देश रहते हम जाएंगे हम सियोन देश हमारा है देश रहते हम हालेलुया 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 मन्ना लगाए यहाँ जाना है हमको मन्ना लगाए यहाँ जाना है हमको यहाँ ऐसे कैसे यहाँ टिका के ऐसे पार करेगा उधर उधर यहाँ से होने से इसको पूरा उठा के ना उधर ले हाँ यहाँ से अच्छा क्या उतना सामान को दो ना उसको थोड़ा उधर लगो इसको थोड़ा सामान को थोड़ा सामान लेकिन ज्यादा मत करो बात में थोड़ा दबा दे दबा दे थोड़ा सा हाँ बस बस होगा वो चलेगा बस बस चलेगा हाँ ले ले होगा होगा चलेगा
What will I say? আৰু লাগিব সেই ৰচিটো এটা সেই চাইডে ধৰি সেই তাত চাৰিটামান মানুহ লাগিব ইয়াত চাৰিটা তাত চাৰিটা লাগিব মোৰ তুমি সেইটো সেই চাইডে লৈ যোৱা সেই তাত চিঞৰ যোৱা এইফালে দিব নে এইফালে দিব So, hallelujah. এই মুহূৰ্ত আমি অন্তিম কাৰ্য এটা আমি অলমষ্ট অন্তিম কাৰ্যত আহিছেগৈ আৰু বাইবেলত উল্লেখ কৰা হৈছেগৈ কি আত্মা য'ৰ পৰা আহিছিলে তালৈ যাব আৰু শৰীৰ য'ৰ পৰা আহিছিলে তালৈ উভতি যাব আৰু কৈছে মাটিৰ পৰা আহিছিলে মাটিতে উলটি যাবগৈ চ' এই কাৰ্যকণ আমি কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ আৰু অলৰেডি আমি চবে লাষ্ট চেৰাখন চালেগৈ এটা আমি ডাইৰেক্টলি তালৈ দি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰি মাটিকণ দিম তো পৰিয়াল আমি এজ এ পাছৰকেইটা যিটো আছে আমি কেইটা আগলৈ দিম প্ৰথম আমি দিম তাৰপিছত পৰিয়াল দিবি তাৰপাছত বাকী বিলিভাৰকেইটা আগবাঢ়ি আহিবিগৈ ঠিক আছে চ' আমি গুচাই उसको ऐसे मत पकड़े বলো আমি সবে মিলি প্রার্থনা করিম পাস্টার স্কিম আর আমি সবে মিলি ইয়াত আছো সবে মিলি আমি প্রার্থনা করিম আর তাৰপাছত যেনেকা মই কৈছো তেনেকা আমি কাৰ্যক্ৰম সমাপ্ত কৰিম দে ওকে বলো আমি সবাই প্রার্থনা করি স্বর্গতেকা পিতৃ মই তোমাক কোটি কোটি ধন্যবাদ কৰোঁ এই সুন্দৰ সুযোগ প্ৰভু তুমি আমাক দিছা হালেলুয়া प्रभु जया आंटी प्रभु तार अंतिम विदाई ओ प्रभु हालेलुया विश्वास करो he is in তাই তোমাৰ লগত আছে প্ৰভু হৰি তোমাৰ বাক্য অনুসাৰে হৰি মাতি তোমাৰ বাক্য আছে প্ৰভু ও প্ৰভু সেই বাক্য অনুসাৰে আমি হৰি দিৱে আমি বিদায় কাৰ্য কৰি আছো প্ৰভু অলমষ্ট আমি অন্তিম কাৰ্য আহিছো মই তোমাক কোটি 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 ধন্যবাদ কৰোঁ প্ৰভু हालेलुया ओ प्रभु मैं कोटि कोटि धन्यवाद करो प्रभु हे सुंदर कार्य प्रभु और हे मालिक मैं सुध करो प्रभु और प्रभु मैं धन्यवाद करूं कि जय आंचे হব পাৰে আজি আমাৰ মাজত নাই লেকিন প্ৰভু যেতিয়া তুমি আহিবা মেঘত আমি লবলে সেই খবৰ পৰা সেই আকৌ পুনৰ তাই যেন আকৌ পুনৰ জীৱ জীৱ সেই প্ৰভু মই ধন্যবাদ কৰো প্ৰভু আৰু মই ধন্যবাদ কৰো কি তাই আপোনাৰ লগত এতিয়া স্বৰ্গত বাস কৰি আছে প্ৰভু মই ধন্যবাদ কৰো তাই আত্মা তোমাৰ লগত আছে প্ৰভু মই ধন্যবাদ কৰো প্ৰভু এই সময়ত প্ৰভু সেই বাক্য অনুসাৰে প্ৰভু আমি ইয়াত প্ৰভু মাটিত মিহলি যাব সেই নিমিত্তে প্ৰভু আমি আজি জয়ান্তিক প্ৰভু তোমাৰ বাক্য অনুসাৰে প্ৰভু আমি মাটিত দি আছো প্ৰভু ধন্যবাদ কৰো যীশুৰ নাম আমেন So, pasa dice. Oriala. Ya, aho. Semua dila, window dila. Okay. Baki aho, baki Raj. Ini boleh kita aho. Sanggup ambil akan ya. Mana jumpa ya? Kuya belsa. আজি আমি সন্ধিয়া
লগ পাম আমাৰ ব্ৰাদাৰ সুজিত ঘৰত আমি সন্ধিয়া 5টা বাজি আমি চবে তাত গোট খাম আৰু লাষ্ট আমি আজিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিম আৰু এসপ্তাহ প্ৰাৰ্থনা হ'ব বাকী দিয়া মাটিকেইটা দিয়া আৰু অহা দেওবাৰে আমি শেষ প্ৰাৰ্থনা কৰিম সন্ধিয়া 5টা বজাত দাদা মই দিনাৰৰ পৰা